again, I want to thank you for the opportunity to come up to your platform and to be a blessing to your congregation and to your viewer all over the world. And I believe that this few time we're going to spend together is going to be a wonderful time, and the Lord will bless his people in Jesus' name. Amen. 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 All right. Father, I receive unction to bring life to your people as we go into your world. Give us understanding. Give everybody understanding. In Jesus' name. बाप हमें समझ बख्श और हमें फजल दे कि अब जब हम आते हैं तेरी खिदमत करने के लिए तो तेरा जलाल इससे ज़ाहिर हो, यीशु के नाम में आमीन. All right. Before I came here, I prayed and asked God, what is the message you want me to share with the people? And God told me specific message to share with the people. जब इस यहाँ आने से पहले मैंने दुआ की और मैंने खुदा से पूछा कि तू क्या पैगाम मुझे देना चाहता है आज लोगों के लिए कि मैं उनको सुना सकूं, और खुदा ने मुझे एक पैगाम दिया. The Lord said, I should share with the people the benefit of suffering. और आज खुदा ने मुझे जो मैसेज दिया है वो मैं आपके सामने इस पैगाम को रखना चाहता हूं. तकलीफ उठाने, एज़ार सानी में से गुजरने के फवायद. You see, sometimes when we go through problems of life, we think that God doesn't know, or we think that God doesn't understand. If God allows us to go through problem, there is a reason for it. जब कभी भी हमारे ऊपर कोई मुश्किलात आती हैं, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में हम फंसते हैं, तो हम ये समझते हैं कि शायद खुदा नहीं जानता या उसको पता नहीं है इस सब कुछ का. लेकिन याद रखिए कि जब भी खुदा हमें किसी मुश्किल में से गुजरने देता है तो उसकी एक वजह होती है. Every suffering we go through have a benefit. और जिस किस्म की भी तकलीफ में से, मुसीबत में से हम गुजरते हैं, उसमें हमारे लिए फायदा होता है. You see, let me start from God Almighty. हम खुदावंद कादर मुतलिक से शुरू करते हैं. The Bible says, for God so loved the world, he gave his only gift, which is Jesus, to the whole world. और खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है कि खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक इकलौता बेटा जो उसके पास था, उसने उसको दे दिया. You see, the gift he gave to the world, which is Jesus Christ, was not easy, but before the benefit will come, Jesus needed to die. Without Jesus being crucified, without Jesus suffering, you and I today would have never have salvation. और ये जो तोहफा हमें बख्शा गया मसीह यीशु की शक्ल में, ये आसान नहीं था. जब तक मसीह मसलूब ना होता, अपनी जान ना देता, निजात का वो तोहफा जो आपको और मुझे मुयस्सर है, वो हमें कभी हासिल ना होता. The death and the suffering of Jesus Christ, the beating and all Jesus went through was for the purpose, had the benefit that you and I should be saved. Thank God today we are saved. और मसीह यीशु का मसाइब में से गुजरना, मसलूब होना और उसको कोड़े पड़ना और सारी तकलीफ जो उसने उठाई है, उस सब का एक मकसद था, और मकसद ये था कि आप और मैं निजात पा जाएं. इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत तोहफा के लिए, निजात का जो उसने हमें बख्शा. So that shows you that God wants us to learn from Jesus. Jesus needed to die. He needed to be suffered. He needed to be smited. He needed to go to the cross, because without that, there's no salvation for mankind. और आप इस बात से अंदाजा लगाइए, खुदा ये चाहता है कि हम मसीह यीशु की तरफ देखें, क्योंकि मसीह यीशु ने तकलीफ उठाई, वो मौत में से गुजरा, उसने एज़ा रसानी को बर्दाश्त किया और इस सब कुछ में से निकल कर उसने हमारे लिए निजात को पेश किया. So the same thing, when we go through trouble, when we come under attack, when things get difficult, when we don't have money, when we are sick in our body, everything we're doing have a benefit at the end of the day. और इसी तरह से जब हम किसी मुसीबत में से, किसी मुश्किल में से, किसी परेशानी में से गुजरते हैं, तो अगरचे वो हमारे लिए तकलीफ होती है, लेकिन आखिर में हमें उससे फायदा हासिल होता है. You see, once you know there is a benefit of suffering, you will never be bitter, you will never be angry, you will never be afraid, you will be full with joy. और जब आप ये समझ जाएंगे कि तकलीफ में से, मुसीबत में से गुजरने के फवायद क्या है, उसका हमें क्या फायदा मिलता है,
तो फिर कभी भी आप तल्ख नहीं होंगे, कभी भी आप झुंझलाएंगे नहीं, कभी भी आप उस मुसीबत से गुजरते हुए परेशान नहीं होंगे। Now, the Bible talks in the book of Hebrew chapter 12, verse 2. Hebrew chapter 12, verse 2. It said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, for for the joy that was set before him, he endured the cross. और खुदा के कलाम में इब्रानियों के खत में उसके 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। Now, if you look at this scripture at the end, it says the Bible said, for the joy that was set before Jesus. Okay, if you look at it, he endured the cross, despising the shame. Why would Jesus have to endure it if there's no benefit? Why would Jesus have to go through it? He said, for the joy that was set before. That means Jesus was looking at the benefit, what will happen, even though they were beating him, even though he was dying, he knew that the cross was going will bring benefit. That's why he was able to endure it. और यहाँ पे खुदा के कलाम में हमें ये पता चलता लिखा है कि उसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, वो फायदा जो उसको नजर आ रहा था, उसकी नजर सलीब पर थी, तकलीफ और परेशानी और अजियत और वो सब कुछ उसके सामने था, लेकिन उसकी नजर उस खुशी पर थी जो उसके बाद उसे मुयस्सर आनी थी। उसमें से गुजर कर जो फायदा उसने हासिल करना था, निजात को पैदा देना था, उसकी तरफ उसकी नजर थी। One of the reasons why Jesus never gave up, it doesn't mean that he wasn't feeling the pain. He was, imagine, his brother forsake him. Imagine they mock him. Imagine the thief mock him. But Jesus knew that one day salvation will come to mankind. So he was able to endure. What does it mean? That means if we know the benefit of what God will give us tomorrow, no matter what we go through, we will not be bitter. अब कौन सी ऐसी चीज थी कि मसीह यीशु इन सारी चीजों को बर्दाश्त करता चला गया? ऐसा नहीं था कि उसको दुख नहीं हो रहा था, उसको तकलीफ नहीं हो रही थी, जब उसको कोड़े मारते तो उसको दर्द नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उसकी नजर जो थी वो उस आगे की खुशी की तरफ थी, जो वो जानता था कि ये सब कर गुजरने से वो इंसानियत के लिए नजात को मुहैया कर देगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी नजर उस फायदे पर होती है जो उस मुसीबत में से गुजर कर हमें हासिल होता है, तो फिर हम उसको बर्दाश्त भी करते हैं। Now, I want to prophesy to somebody watching me right now that whatever you're going through right now is not the end of your life. There are better part of your life that will happen in 2021. और मैं खुदा का ये कलाम आप में से किसी को देना चाहता हूं जो इस वक्त मुझे सुन भी रहा है, ये उसके लिए खुदा का कलाम है कि आप जिस मुसीबत में से भी गुजर रहे हैं, याद रखिए कि ये आपके लिए फायदेमंद बनेगी और खुदा इसमें से आपके लिए भलाई पैदा करेगा। What do I mean by that? What I mean is that what you don't know, God know everything. If God allow you to suffer, there is a reason for it. और मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? याद रखिए कि आप महदूद जानते हैं, आपको कम पता है, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। वो जब इजाजत देता है मुसीबत को कि वो आप पर आए, तो वो जानता है इसमें से आपको वो किस तरह से बरकत देगा और आपके लिए भलाई पैदा करेगा। So that tells you that, particularly those of you who live in Pakistan or live in the Islamic world or where persecution is very high, I want to tell you that don't be sad, don't be discouraged. God know why He put you there. God know why you are in that country. No matter what you're going through now, I promise you, at the end of the day, you will smile. आप जो किसी भी खिते में रहते हैं और इस हिस्से में खास तौर पे रहते हैं, इस एरिया के अंदर, तो आप जो कि मुख्तलिफ तरह की इज़ार आसानियों में से गुजर रहे हैं,
याद रखिए खुदा ने आपको खास मकसद के लिए इन जगहों के अंदर रखा है और वो आपको इसी में से बरकत देगा और इसी जगह पे आपको ब्रोमंद करेगा और फलदार बनाएगा। So that tell you you are there for a reason, you are there for a purpose. I want to tell you in 2021, the purpose of everything you are suffering will manifest very soon in Jesus' name. आमीन। और आप जहां कहीं भी हैं याद रखिए आप एक मकसद के तहत इस जगह पर रखे गए हैं खुदा के मंसूबा के मुताबिक। और मैं आपको ये बताता हूं कि इस 2021 के अंदर आपके ऊपर खुदा का वो मकसद जो है वो नुमाया हो जाएगा, वाजिया हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि आप इस जगह पे क्यों हैं और इसमें से क्यों गुजर रहे हैं। All right. Now, in the book of Romans, chapter 8, verse, I want to read you verse 18 so that your faith should be on the word of God. और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखिए रोमियो 8वां बाब Verse 18. Romans 8 and verse 18। ओके, उसकी 18वीं आयत। He said, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." आमीन। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। हालेलुया। Paul said, "Oh, I feel the anointing right now." He says, um, he said, if you want, he said, if you recall to recall, I mean, is to consider to perceive. He said, if you perceive the suffering or what you're going through now cannot be compared with the glory, because anytime you suffer is a sign that God will reveal, God will pour, God will make sure the glory of your life will come out in the greater and in the powerful way. आमीन। और याद रखिए पालूस रसूल इस जगह पे ये कह रहे हैं कि अगर आपका ध्यान जो है दुख और तकलीफ की तरफ है जिसमें से आप गुजर रहे हैं तो इस बात को याद रखिए कि उसमें से खुदा बड़ा जलाल जाहिर करेगा। क्योंकि खुदा आपको जब मुसीबत में से गुजारता है तो खुदा उसमें से आपके लिए बड़ा जलाल जो है वो बेनिफिट के तौर पे, फायदे के तौर पे आपके लिए उसको रख छोड़ता है। The Bible says, if the devil know that crucifying the Lord Jesus Christ will make him to actually be destroyed, he will never try this. So what everything you're going through now is bringing you closer to God, is making you a better person, is bringing the best in you, and that best nothing can stop it in Jesus' name. आप जिस मुसीबत में से भी जब अब गुजर रहे हैं और मसाइब को बर्दाश्त कर रहे हैं, अजियत में से गुजर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको एक बेहतर शख्स बनाने के लिए, आपको एक बेहतर किरदार देने के लिए और मसीह यस्सु का जो मकसद है इसमें आपके इस आपकी तब्दीली के अंदर जो है वो उसका पूरे होने को है और उस मकसद को यस्सु के नाम से अब कोई भी नहीं रोक सकता। I want to tell somebody watching me on any part of the world that your end shall be better than your beginning. और मैं आपको जो हमें देख रहे हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जो अंजाम है वो आपके आगाज से बेहतर होने वाला है। So the reason why God allow us to suffer is because why God want at the end of the day for his name to be glorified. और हम जब मुसीबत में से गुजर रहे होते हैं तो उसका पहला जो एक मकसद होता है वो ये कि हम उसके नाम को जलाल दे रहे होते हैं। Most of the people God use in this season, in this time, are people that suffer. If you don't go through pain, if you don't go through suffering in life, you won't have testimony, you won't have message. It's your pain, it's your difficulty that give you message for your generation. और ज्यादातर जो लोग हैं हम में से वो मुसीबतों में से, मुश्किलों में से गुजर रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए अगर हम इनमें से नहीं गुजर रहे हैं तो फिर कोई गवाही हमारी जिंदगियों से पैदा नहीं होती। जो मुसीबत है, जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो असल में आपकी जिंदगियों के अंदर एक गवाही पैदा कर रही होती है और उससे मसीह यस्सु को जलाल मिलता है। हालेलुया। If you look at the great people in the Bible who God used, number one, if you look at Joseph, number one, his brother rejected him. They put him in the pit, okay? And he went to, he was a slave in Egypt, and then he went to prison. The reason why he needed to go through that because he need to learn suffering so that when he become leader, he can now give God. So Joseph needed to go through the shame. But how did he end? He ended up in the palace
as a prime minister. So that will be your story too in Jesus' name. आप बाइबल में से बड़े बड़े लोगों को जब देखते हैं, खास तौर पे सबसे पहले अगर यूसुफ पे नजर करें तो देखें कि उसके भाइयों ने उसको धुतकार दिया, उसको बेच दिया, उसको घड़े में डाल दिया गया। वो सारी मुसीबत में से, शर्मिंदगी में से गुजरा, लेकिन आखिर में हुआ क्या? हमें वही यूसुफ जो शर्मिंदगी में से गुजरता है, वो हमें मिस्र का वजीर आजम बना हुआ नजर आता है। हालेलुया। Okay. Another woman in the Bible called Mary Magdalene, the Bible says Jesus cast out 7 demons. She और needed to have demon in her. हमें हमें एक और खातून जो है वो बाइबल के अंदर नजर आती है जिसका नाम मरियम मगदलीनी है, और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मसीह यस्सु ने उसमें से 7 बदरूहों को निकाला। Mary has 7 demons was cast, and that means she suffered affliction for demon. But look at the way Mary ended. According to the Bible, Mary was the first woman among every woman, Mary Magdalene, to see when Jesus resurrected from the grave. That tells you your suffering will bring glory to what you're going through right now. और वो जो मरियम मगदलीनी है जिसमें से 7 बदरूहों को निकाला गया, ये उसके लिए तकलीफ दे बात थी। वो मुसीबत में से गुजरी, उस अजियत में से गुजरी उन बदरूहों की वजह से। लेकिन जब देखे कि वो मसीह यस्सु के पास आई और मसीह यस्सु ने उसको आजाद किया, तो कितना बड़ा एजाज उसको मिला है कि बहुत सारी खवातीन थी वहां पे मसीह यस्सु की हम खिदमत करने वाली, लेकिन उसे ये एजाज हासिल हुआ कि वो जिंदा हुए मसीह को वो पहली खातून थी जिसने देखा। हालेलुया। Another person was a woman too, called the Shunammite woman, who had been married for over 5 years or 6 years, 5 or 6 good different people. But see, she's been used by people, dumb, used and dumb, used and dumb. Her life had been shattered from different men and different men. But God allowed her to go through that because she's about to meet with the Lord Jesus, and she's about to become the first evangelist woman in the Bible. और मैं आपको ये इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि मुसीबत में से गुजरने के कितने फवायद हैं। एक और खातून को हम देखते हैं, सामरी औरत, जिसने 5 शौहर किए और उसको वो उस सारी शर्मिंदगी के अंदर से गुजर रही है, लेकिन यीशु मसीह से जब वो बातचीत करती है, उसे कबूल करती है, तो वो पहली मुबशरा बन जाती है और वो मसीह यीशु की जाके तबलीग करती है। ये फवायद हैं जब हम मसीह यीशु से जुड़ते हैं और उसके मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं। If you look at the way her life ended, with all her life with different men here, different men there, different men there, when she finally went with Jesus, Jesus didn't condemn her. Now Jesus used her. She went to the city. According to the Bible, she said, "Come and see the man that told me everything." The Bible said the whole city came and heard Jesus. Why? Because of her experience. Now she has a voice to be an evangelist for soul winning. So the same thing I अब prophesy to you, that whatever you're going through right now, God will use you in Pakistan, God will use you in Dubai, in America, in आमीन, Australia to propagate His gospel in the name of Jesus. आमीन, आमीन। और यहाँ पे ये खातून देखें, इसने मुख्तलिफ मर्दों के हाथों से दुख उठाया है, लेकिन जब वो मसीह यस्सु के सामने आती है तो यस्सु मसीह ने उसको ना शर्मिंदगी का एहसास होने दिया, ना उसको उसको धुतकारा या उसको डांटा है। और जब वो उसको कबूल करती है तो वो जाती है गांव में, वो उसकी मनादी करती है और कहती है, देखो ऐसा शख्स मुझे मिला है जिसने मेरे सब कुछ गुनाह मुझ पर जाहिर कर दिया और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। और बाइबल में बताती है कि पूरा शहर जो है, पूरा वो गांव जो है, वो उमड़ आता है और वो मसीह यस्सु को हासिल करता है। So I want to और encourage मैं you. आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद आपको इस सब कुछ में से गुजार के आपको इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान में, दुबई में, यूएसए में, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के अंदर वो आपको इसमें से निकालेगा और आपको इस काबिल बना रहा है कि आपको इस्तेमाल करे। So don't be discouraged. Don't be frustrated. But why am I suffering? Why God is, I don't have money. I'm not married. I don't have children. I don't have house. I'm a widow. Don't worry. Everything you're going इसलिए through will end in the better way. किसी भी चीज के लिए फिक्रमंद मत हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं है, या मैं बेवा हो गई, या मेरे कोई कोई और मेरा करीबी नहीं रहा, या मेरे पास कुछ भी आसाइशें नहीं है। इन चीजों के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि इन आप मसीह यीशु से प्यार करें, उससे लिपटे रहें, तो आखिर में इस सब कुछ में से वो आपके लिए भलाई पैदा करेगा। Now, another person I want to show you in the Bible, his name is called Daniel.
और और शख्स जो हमें बाइबल में नजर आता है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं वो दानियल है। Daniel was persecuted because of his religion. They said, और अपने go ahead. मजहब की वजह से, अपने ईमान की वजह से दानियल जो है उस पर उसको अजियत दी गई। Some of you right now in Islamic world right now, you are persecuted because of your faith. You are persecuted because of your belief in Christ. But I want to promise you one thing. God will not let you down. God will not forsake you. God will fight for you in Jesus' name. और आप जो ऐसे मुल्कों में हैं कि जहां पे आपके ऊपर तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, आपके ईमान की वजह से आपको रद्द कर दिया जाता है, तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद आपको बरकत देगा और वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, कभी आपको मायूस नहीं करेगा, बल्कि आपको बरकत के लिए वो इस्तेमाल करेगा। Now, they put Daniel into lion den for him to be killed. But because Daniel trusts God and God see his heart, God said, okay, I will not allow you. God sent an angel to close the mouth of the lion, and he wasn't killed. Today, we're reading about Daniel. Why? Because of his faith. I want to tell you, I don't know the lion den they put you. Some of you could be financial situation, but I promise you, God will never allow the lion to kill you. Your lion may be sickening, may disease. God will rescue you, and all your enemy will put to shame in Jesus' name. और दानियल को जो है वो शेरों की मांद के अंदर डाल दिया गया उसके ईमान की वजह से, लेकिन वहां पे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उसने उन शेरों के मुंह बंद कर दिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका शेर आप हो सकता है कि आप इसी तरह शेरों की मांद में, और वो शेरों की मांद जो है वो आपका कोई माली मसला हो सकता है, वो कोई और मुसीबत हो सकती है, कोई और परेशानी हो सकती है, लेकिन याद रखिए अगर आपकी नजर खुदा पर है, आप उस पर भरोसा करते हैं और उसकी नजर आपके दिल पर है, तो वो आपके इन शेरों के मुंह बंद कर देगा और आपको वो छुड़ा लेगा, आजाद कर देगा। आमीन। Another story is called Shadrach, Meshach, and Abednego. और एक और जो कहानी हमें यहाँ नजर आती है वो सिदरक में सकब्दनजू की है। Now, they told them to bow down and worship an idol. उन्होंने उनको कहा कि तुम जो है हमारे बुत के आगे झुको और उसकी इबादत करो, They said they will not bow down. लेकिन उन्होंने इनकार किया। I know you who are in Islamic world right now, you are being compelled to follow a religion that you are not satisfied. You don't have a conviction because your father is into the religion, your mother or the country. They are forcing you to do things that you don't want to. It's not your desire. But I want to tell you, God will never let you be put to shame in Jesus' name. हो सकता है कि आप जिस मुल्क के अंदर है, जहां पे भी आप हैं, वहां पे हुकूमत या ऐसे कवानीन या आपके जो लोग हैं इर्द गिर्द, वो आपको दबाव में लाते हैं और आपको वो चाहते हैं कि आप अपने ईमान से हट जाएं, मसीह यीशु का इनकार करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन जगहों के अंदर भी आप जब इस सब कुछ में से गुजर रहे हैं, खुदा पर भरोसा रखिए, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। If God could deliver Shadrach, Meshach, and Abednego, I prophesy, you too, wherever you are now, with the pain, with the shame, God will deliver you in Jesus' name. और अगर खुदा सिदरक मिसक अब्दनजू को आजाद कर सकता है, तो फिर वो आपको भी, आप जहां कहीं ही क्यों ना हो, वो आपको आजादी बख्श सकता है। हालेलुया। Now, what do? Because they refuse, they told them they won't bow. They said they believe their God is able to deliver them. But say, even though God chooses not to deliver, we cannot bow down. I pray, may in terms of the days of trouble, may you not give up. May your faith be strong in Jesus' name. और वहां पे उन तीनों दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा हमारा खुदा जो है वो इस काबिल है कि वो हमें तुम्हारी मुसीबत से और इस आग की भट्टी में से गुजार ले, लेकिन अगर खुदा की ऐसी मर्जी नहीं भी है कि वो हमें बचाए, तब भी हम तुम्हें सजदा नहीं करेंगे। अगर आप लोग इसी तरह अपने ईमान से जुड़े रहते हैं, खुदा से लिपटे रहते हैं, तो मत घबराइए, क्योंकि वो आपको मायूस नहीं करेगा, वो आपको आजाद करेगा और वो आपको बरकत देगा। Listen, they put them into the fire. What happened? For the first time, there was a fourth man there. What does that mean? The fourth man represents Jesus Christ. That means they put in the fire to die. But because they और trust in God, God makes sure that only the chain they used to tie them burned up, but they were not burned. That means
Wherever fire you're going through right now, it will not bond you, it will not destroy you, it will burn anything that's not the will of God out of your life in Jesus' name. और वहां पे हुआ क्या कि उन 3 दोस्तों को जब उस आग की भट्टी के अंदर डाल दिया गया तो वहां पे बादशाह को और उन लोगों को जिन्होंने उनको आग की भट्टी में फेंका उन्हें एक चौथा शख्स नजर आता है और वो जो चौथा शख्स है वो मसीह यीशु है। और वहां पे वो उनको देखते हैं कि उन्होंने तो जंजीरों से बांध कर उनको वहां पे फेंका था, लेकिन उनकी जंजीरें खुलियां और वो उस आग की भट्टी के अंदर फिर रहे हैं। जब उन्हें निकाला जाता है तो जरा सा भी आग ने उनको झुलसाया नहीं, जलाया नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगरचे आप भी किसी तरह की आग की भट्टी में हैं, तो याद रखिए अगर आप मसीह यीशु के साथ हैं और वो आपके पास मौजूद हुआ है, तो आप बिल्कुल ये आग आपको जलाएगी नहीं, बल्कि इसमें भी खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। Let me tell somebody prophetically in the spirit right now. You're going through some pain right now, some hard time. The people around you are watching you, but the reason why they're watching, they want to know whether your goal will deliver you. They want to know whether your goal will come true for you. The Lord said I should tell you, that woman watching me, that man watching me, that don't give up. God will not put you to shame. God will deliver you from whatever you're going through now in Jesus' name. और एक बहन जो हमें देख रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किसी तकलीफ में से और मुश्किल वक्त के अंदर से गुजरी हैं, लोग देख रहे हैं और वो तवक्को कर रहे हैं कि आपका खुदा आपको शिफा देता है कि नहीं, लेकिन मुझे खुदा का रूह ये कह रहा है, मैं आपको ये बताऊं कि आप हिम्मत मत हारिएगा, आप खुदा पर ईमान रखें और उससे प्यार करें, तो यकीन जानिए वो आपको आजाद करेगा इस सब कुछ में से। Now, look at the way it ends. According at the because when King Nebuchadnezzar and everybody they noticed that they didn't die, you know what happened? They changed their mind, they brought them out, and they said they will serve the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Why? Because they saw the हालेलुया। power of God deliver. I want to prophesy to you. The people who are persecuting you right now, the people who are criticizing you because you gave your life to Jesus or you are preaching in that. There's somebody watching me, you are an evangelist. I'm seeing you right now. You've been persecuted so much because of the gospel. God said he will vindicate you. He will prove to your enemy that God is powerful. आमीन। और आप देखते हैं सिदरक मेशक अबदनजू को जब वो आग की भट्टी में डाल दिए गए और इसमें खुदा की मर्जी थी कि वो उस मुसीबत में जाते, क्योंकि इसके बाद हुआ क्या कि नबूकतनजर और वो बादशाह ने और हुकूमत ने अपने जहन को बदल लिया और उन्होंने जब उसको निकाला तो उन्होंने देखा कि इनका खुदा कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। तो उन्होंने वहां पे ऐलान किया कि पूरी रियाया जो है, सारी हुकूमत जो है, वो अब सिर्फ और सिदरक मेशक अब्दनजू के खुदा की जो इबादत करेगी। और आप में से जो मुझे देख रहे हैं, कोई मुबशर हैं, मैं आपको देख सकता हूं कि खुदा आपको आजाद करेगा। आप मुश्किल में और अजियत में से गुजरे हैं, तो याद रखिए कि खुदा इस सब कुछ में से आपको आजाद करेगा और बरकत देगा। That tells you that the suffering of Meshach, Shadrach, Abednego, at the end of the what happened, there was a benefit. The whole kingdom bowed down and worship Jesus. So I want to tell somebody watching me, you're going through pain. You're a single parent. Okay, your husband has cast you out, okay, because of your faith in Jesus Christ, because you don't want to. They throw you out because you believe in Jesus Christ. They say they will not support you with things. But I can tell you, at the end of the day, if you don't give up, they will come and bow their name and worship Jesus Christ, the Son of the living God. और देखिए कि यहाँ पे फायदा हमें किस तरह से नजर आता है उस मुसीबत में से। सिदरक मेशक अब्दनजू ने जो मुसीबत आई उसका फायदा क्या हुआ कि पूरी रियाया के ऊपर खुदावंद कादिर मुतलक का जलाल जाहिर हुआ और उसकी कुदरत जो है वो उस पर छा गई और उन्होंने उसको खुदा मान लिया। उन्होंने उसको अपना खुदा मान लिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई शायद ऐसा है कि उसके खामद ने उसको छोड़ दिया उसके ईमान की वजह से और वो मुश्किल में है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगी और आप मसीह यस्सु को नहीं छोड़ेंगी, तो वो आपको बरकत देगा। आपके ईमान के बदौलत और इस तरह जुड़े रहने की बदौलत वो आपको बरकत देगा। So don't give up. I know your land where you are, they are trying to kill you. No, God will not allow you to be killed because why? God promised they that trust in the Lord will never be put to shame. If God did not abandon Daniel, did not abandon Shadrach, Meshach, okay, God will not abandon you. So let your heart
Be strong in Jesus' name. हिम्मत मत हारिए और खुदा पर अपने ईमान को कभी डामाडोल ना होने दीजिएगा, क्योंकि जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो जिस तरह थोड़ी सी मुसीबत के बाद आप देखेंगे कि खुदा जहद बारी जलाल पैदा करेगा। अगर उसने दानियल को नहीं छोड़ा, सिदरक मेसक अब्दनजू को नहीं छोड़ा, यूसुफ को या किसी और को नहीं छोड़ा, तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। Let me tell you, the advantage of suffering, one of these is that when you go to Spain, when you go to suffering, is showing you the kind of anointing God want to pour upon you. I और prophesy, इसका some of you who are going through pain, those who are on the line here, Mary, Janet, Beatrice, and whoever you are watching me, God is about to increase your anointing so that you can use it to touch other women, other men around the world in Jesus' name. आमेन। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एक और फायदा जो है मुसीबत में से गुजरने का, वो ये है कि आप जान पाएं कि किस तरह का मसा आपकी जिंदगी पर आप आकर ठहरने वाला है। और सिस्टर मैरी जिन्होंने हमें हमारे साथ हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन खुदा आपको जो मसा दे रहा है वो इस तरह से है कि आप बहुत सारे खवातीन को जाकर खुदा के कलाम को सुनाएं, और वो आपको बढ़ा रहा है इस सब कुछ में से गुजार कर। Now, another advantage of suffering is that when you suffer for Christ, the crown of glory on your life will be bigger than everybody. Not everybody will suffer, but those who suffer, it brighten your crown, because on tomorrow when we go to heaven, God will give a crown. The star, the beauty of your crown is start to the level of your suffering. और मैं आपको एक और इसका फायदा बताना चाहता हूं कि जो हर कोई जो है वो मुसीबत में से गुजर कर आसमान पर नहीं जाएगा, लेकिन जो मुसीबत में से गुजर कर आसमान पर जाएंगे, आसमान पर हमें जो ताज मुहैया किया जाएगा, ताज दिया जाएगा, उसकी रोशनी मुसीबत में से जो गुजर कर आएंगे उनका ताज बहुत ज्यादा रोशन होगा और बहुत बड़ा होगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आपका जो रिवार्ड है, इनाम है, आपको जो एंड पे मिलना है, वो आपने कितना ज्यादा मुसीबत उठाया उस पर डिपेंड करता है, उस पर मुनसर है। If you look at the gold or the diamond people use, if you look at it literally, it's very rough. But for gold to shine, be a gold, they have to put it into the fire. Fire purify gold. And then today, women use gold, men use gold in your wristwatch. Why is it beautiful? It has to go through fire. So that tell me the benefit of going through pain is to purify you, is to make you a man of God, a woman of God, an evangelist, a prophet with fire in your life. और आप देखते हैं कि सोना कितना खूबसूरत नजर आता है। हमारी जो औरतें हैं वो जेवरात पहनती हैं, घड़ियों के अंदर हर एक जगह के पे सोना लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसकी खूबसूरती उस वक्त आती है जब ये आग में से गुजार कर पाक कर लिया जाता है। हर तरह की जो नकाइस हैं वो उसमें से निकाल दिए जाते हैं और वो खूबसूरत बन जाता है। जब आप इसी तरह से आग की भट्टी में से गुजर कर खूबसूरत बनते हैं, तो तब आप खुदा के खादम या खुदा की खादमा कहलाते हैं, मुबश्शर कहलाते हैं, और खुदा आपको इस तरह से चुन लेता है। Jesus said, on this earth we shall have tribulation. The word tribulation means different kind of trouble. One trouble from another trouble. That's what you're going through right now. I'm talking to somebody prophetically right now. You're going through so much tribulation right now. You don't have a house where to stay. You're not married, or you're married. You're not enjoying your marriage. Your husband is beating you. Every tribulation. The Bible Jesus said, "Well, cheer up." Why? Because Jesus has overcome them, and you too will overcome them in Jesus' name. और खुदा के कलाम में हमें ये पता चलता है कि जमीन पर हमें मुसीबत में से गुजरना है। और मुसीबत के लिए जो लफ्ज ट्रिबुलेशन इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह मुसाइब के अंदर से गुजरते चले जाना। और मैं यहाँ पे किसी के लिए खुदा का कलाम ये देना चाहता हूँ कि अगर आप मुसीबत में से और परेशानी में से आप गुजर रहे हैं और आपके कोई नाचाकी है आपके हस्बैंड के साथ, आप अपनी उस अज़दवाजी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा रहे, तो आप मसीह यीशु पर भरोसा करें। वो आपको बरकत देगा और आपको इस सारी मुसीबत में से गुजार कर आपको फायदा देगा। The level of anointing and power and miracles you go to, you manifest in life is tied to the level of suffering, the level of rejection. Until somebody rejects you,
or somebody abundantly, that's when God will pick you. So I want to prophesy. Those who have been rejected, those who have been abandoned, those who are suffering now, those says the Lord, the glory of God, the power of God is about to rest upon you in 2021 in Jesus' name. जब आप किसी मुसीबत में से, किसी परेशानी में से गुजरते हैं, या लोग आपको रद्द कर देते हैं, लोग आपको दुत्कार देते हैं, तो याद रखिएगा कि आपकी जो तकलीफ का लेवल है, सतह है, आपको उसी सतह की अनॉइंटिंग, उसी सतह का मसा हासिल होता है और आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको लोगों ने रद्द कर दिया है, आपको आपके ईमान की वजह से छोड़ दिया गया है, तो खुदा आखिर में आपको बरकत देगा और बढ़ाएगा। Okay, I'm going to give you two things before I close that you need to do to be able to live victoriously no matter the attack you're going to come your way in एक 2021. फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपको किन दो चीजों की जरूरत होती है, वो मैं आपको बताता हूं इससे पहले कि मैं खत्म करूं। Number one, live by faith. पहली बात, ईमान पर जिंदगी बसर कीजिए। See, the Bible says, I have not seen, ear have not heard what God is preparing for us. So, you see, और if खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि ऐसी चीजें जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, खुदा ने अपने लोगों के लिए वो तैयार कर रखी है। so, don't focus your eye on your pain, don't focus your eye on your rejection, don't focus your eye on what you don't have, don't focus your eye of what is wrong with your life, don't focus your eye on what how people don't like you on the persecution. Focus your eye on God. That means you are living by faith, and God will never let you down in Jesus' name. और खुदा पर ईमान रखना या ईमान की जिंदगी बसर करना, उसका मतलब ये है कि आपकी नजरों का मरकज जो है वो आपकी मुसीबत ना हो, वो ऐसी कि आपके पास कोई कमी है, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, आप किसी मुश्किल में से हैं, लोगों ने आपको रद्द कर दिया, आपको कबूल नहीं किया जाता। अगर आपकी नजरें इस चीज पर हैं तो फिर आप ईमान पर जिंदगी बसर नहीं कर रहे। ईमान पर जिंदगी बसर करने का मतलब खुदा पर नजर रखना है। So, what does it mean to live by faith? To live by faith, that means what you don't have, you believe you have it. और What ईमान पर जिंदगी बसर करने का मतलब यह है कि जो आपके पास बज़ाहिर नहीं है, आप ईमान से ये यकीन रखें कि वो आपके पास है। yesterday night, one of my members called me. She's having problem with her heart. She has heart surgery. और कल मुझे मेरे चर्च मेंबर में से किसी ने मुझे फोन किया, उसका दिल की सर्जरी होनी थी, ऑपरेशन होना था। So I told her, "Can I pray for you?" She said, "Sure." I said, "In the next few minutes, you're going to be healed." Why do I say that? I spoke by faith. और मैंने उससे ये कहा कि मैं आपके लिए दुआ करता हूं और अगले चंद लम्हों के अंदर आप बिल्कुल शिफा पा जाएंगे। और मैंने ये क्यों कहा? मैंने ईमान के साथ ये अल्फाज बोले। I prayed for her. In few minutes, she called me back. She said me say that my heart is fine now. Everything about my heart beating was fine. Why? Because I spoke by faith. और जब मैंने दुआ की तो चंद ही मिनटों के बाद उसने मुझे दोबारा फोन किया और उसने कहा कि मेरा दिल जो है वो बिल्कुल अब ठीक काम कर रहा है, और जो कुछ भी उसके साथ मसाइल थे, वो उसकी धड़कन का बेतरतीब होना, वो सब कुछ जो है वो ठीक हो चुका है। हालेलुया। So another thing I want to say when it comes to faith, that don't speak your pain, don't speak what you don't have, don't speak what is wrong with you. That's what the Bible said. Let the weak say, "I am strong." So for you to overcome, don't speak your problem. Speak अगर what आप God say about you. अगर आप मुसीबत पर गालिब आना चाहते हैं तो उसकी एक चाबी जो है उसको अपने पास रख लें। जिस तरह खुदा का कलाम ये कहता है कि कमजोर भी कहे मैं जोरावर हूं, इसलिए कभी अपनी मुसीबत का जिक्र ना कीजिए, इतना अपनी अजियतों का जिक्र ना कीजिए, बल्कि खुदा जो आपको कहे उसको बोलिए, उसका जिक्र कीजिए। यही कामयाबी का राज है। Because life and death is in the power of the tongue. क्योंकि जो जिंदगी और मौत है वो जुबान के इख्तियार में है। Your word activate demon, your word activate angels. और आपके जो अल्फाज हैं वो मुतहरक कर देते हैं या तो शयातीन को और या फिर फरिश्तों को। So be very careful whenever you're going through pains and situation. Don't say your pain,
say the word of God, and the angels of God will make sure victory come your way in Jesus' name. और इसी तरह जब आप किसी मुश्किल में से गुजर रहे होते हैं तो मत ऐसे अल्फाज बोलिए कि जिससे आपके मसाइब को जो जलाल मिले और वो जो है वो बड़े होते चले जाए, बल्कि ऐसे अल्फाज बोले जिससे आपको जो खुदा आपके मुंह में डाले और जो खुदा चाहता है आप बोले, और इस तरह से आप एंजल्स को, फरिश्तगान को मुतहरक करते हैं। The last thing I want to say that will help you in the journey of life is joy. और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा के साथ चलते हुए आपको मदद करती है, वो खुशी है। Whenever you're going through suffering, pain, don't lose your joy, because your joy is the oil that will sustain you. और जब भी आप किसी मुश्किल में, परेशानी में, मुसीबत में से गुजर रहे होते हैं, तो उस खुशी को जो आपको खुदा की तरफ से मिलती है, वो दिल का इत्मीनान, उसे मत खो दीजिएगा, उसको पास रखें, क्योंकि वही आपको उसमें से गुजरने की ताकत बख्शती है। When you are joyful, you are powerful. When you are joyful, you can never be broken. When you are joyful, the hand of God will be upon you. When you are जब joyful, the fire of the Holy Ghost will continue to be with you. जब आप खुश होते हैं तो फिर आप ताकतवर होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो खुदा का जलाल आपके पर आकर ठहरता है, और जब आप खुश होते हैं तो तब आप इन सब में से गुजरते हैं और इनको बर्दाश्त कर सकते हैं। So as I wrap up, all I want to help you understand that और आखिर में इसका खुलासा देते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ताकि आप समझ जाएं, every suffering you have been through since you were 10, 19, 20, till this moment, I want to tell you as I close that before 2021 is over, you're going to see the benefit, you're going to see the blessing that come with the suffering in Jesus' name. आमीन। और आप किसी भी वक्त से, आप कितने ही सालों से मुश्किल में या परेशानी के अंदर हैं, लेकिन मैं आज आपको हौसला देते हुए आपको ये बताना चाहता हूं, इससे पहले कि ये 2021 का साल इख्तिताम पजीर हो, आपको खुदा इन मसाइब में से गुज निकालेगा और आपको इसका फायदा देगा, आपको इसकी बरकत देगा। Put your hand on your head. Let me pray for you. अपने हाथों को, एक हाथ को अपने सर के ऊपर रखिए और मैं आपके लिए दुआ करता हूं। Spirit of the living God, come upon your children now in Jesus' name. अभी खुदा का रूह जो है वो आपको और आपके बच्चों को छुए। I invoke the power of God to come upon them now in Jesus' name. और मैं खुदा की कुदरत को आपके ऊपर आने देता हूं। Every pain, every suffering you're going through now, I turn the suffering to blessing in Jesus' name. और किसी भी मुश्किल, तकलीफ और दर्द में से आप गुजर रहे हैं, मैं उन्हें हुक्म देता हूं कि वो आपके लिए बरकत में बदल जाए। Whatever you have lost in life, I command you will recover everything in 2021 in Jesus' name. और जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी के अंदर खो बैठे हैं, मैं हुक्म करता हूं कि 2021 के अंदर वो आपको लौटा दिया जाए। May God give you harvest. May God give you abundance. May God prosper you in every area you have suffered in Jesus' name. और खुदा आपको फलदार बनाए और आपकी जिंदगी के हर हिस्से में जहां जहां आपने तकलीफ उठाई है, आपको उसका कई गुना लौटाए। You will not die. You will live to manifest blessing in 2021 in Jesus' name. आप मरेंगे नहीं, बल्कि 2021 के अंदर आप जिएंगे और खुदावंद यीशु के नाम को जलाल देंगे। You who are ministry, the men of God like Jonah and Bhatti, or anybody who is in ministry, I release anointing to help you overcome as you go for evangelism. Go, angel will go with you in Jesus' name. आप में से जो कोई भी इस वक्त जो है वो खिदमत में है, मैं उसको बरकत देता हूं कि जब वो तबलीग के लिए जाता है तो खुदा उसको बरकत दे। Father, I bless your people. I decree 2021 will be a year that they will rejoice, they will praise you, they will have testimony in every area in Jesus' name. और मैं बाप तेरे लोगों को बरकत देता हूं कि जिस भी एरिया में ये मुसीबत उठा रहे हैं, ये इस साल के अंदर उसमें गवाही पैदा हो और ये तेरे नाम को उससे इज्जत और जलाल दें, यीशु के नाम में। Amen. आमीन, हालेलुया।